सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज 85, हमारे लास्ट डिस्कशन में क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे अभय को डांट पड़ी थी उनके गुरु महाराज से। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Srila Prabhupada. My Guru Maharaj's contribution is that he defeated the caste Goswamis, he defeated this Brahmanism, he did it the same way as Chaitanya Mahaprabhu did. As Chaitanya Mahaprabhu said, Iba Vipra, Iba Nyasi, Shudra Kene Nai, Ei Krishna Tattva Veta, say Guru Hai. There is no consideration whether one is a sannyasi, a brahmana, a shudra, or a grahastha. No, anyone who knows the science of Krishna, he is all right. He is Goswami and he is Brahmana. तो ये चीज हमने डिस्कस की थी कल, ये पैरा हमने डिस्कस कर लिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर वह कृष्ण को तत्व से जान रहा है, दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, तो वो एकदम परफेक्ट है और वह ही गोस्वामी है, वह ही ब्राह्मण है, ना कि वह व्यक्ति जो कास्ट से ब्राह्मण है पर ब्राह्मणों वाला कुछ आचरण ही नहीं कर रहा है. But no one else taught that since Lord Chaitanya. This was my Guru Maharaj's contribution, and for this reason he had to face so many vehement protests from these brahmanas of the caste Goswamis. तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से सिखाया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह से सिखाया था वैसे ही श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी सिखा रहे, और उनके अलावा ऐसा किसी ने किया नहीं. और इसी कारण से उनको इतने सारे ऑपोजिशंस झेलने पड़ रहे थे कि भाई जो व्यक्ति कास्ट से गोस्वामी नहीं है वो कैसे ब्राह्मण हो सकता है, कैसे आप उसको दीक्षा दे सकते हैं. तो ये सारे अपोजिशंस आ रहे थे इस वजह से. Once they conspired to kill him, my Guru Maharaj told me personally. By his grace, when we used to meet alone, he used to talk about so many things. He was so kind that he used to talk with me, and he personally told me that these people, they wanted to kill me. They collected 25,000 rupees and went to bribe the police officer in charge of the area, saying, "You take these 25,000 rupees. We shall do something against Bhakti Siddhanta Saraswati and you don't take any steps." तो ये वही वाला पास टाइम है जो हम डिस्कस करने वाले थे कि एक बार अभय के जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने उनको पर्सनली ये बात बताई थी कि यहाँ तक कि लोगों ने उनको मारने तक का प्रयास किया. तो अभय से उनके गुरु महाराज इस तरह से व्यक्तिगत बातें भी किया करते थे. तो उन्होंने इस तरह से मुझे पर्सनली बताया कि वो मुझे मारना चाहते थे. उन्होंने 25,000 रुपए लिए और पुलिस को दिए, मतलब जो भी इंस्पेक्टर था उनको दिए, और उनको क्या बताया कि आप ये 25,000 रुपए लीजिए और हम जो भी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ करते हैं आप उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप शांत रहेंगे. He could understand they wanted to kill him. So the police officer frankly came to Bhakti Siddhanta Saraswati. Of course, we accept bribes and we indulge in such things, but not for a sadhu, not for a saintly person. I cannot dare. So the police officer refused and said to my Guru Maharaj, "You take care. This is the position." This was because he so vehemently protested. So, अब वो जो पुलिस वाला था वो समझ रहा था कि भाई ये लोग इनको मारना चाहते हैं. तो वो पुलिस वाला गया श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास और बिल्कुल उनको साफ साफ बताया कि हाँ ये सारी चीजें हम करते हैं, हम इस तरह से घूस वगैरह लेते हैं इन सारी चीजों के लिए, लेकिन एक साधु के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे. हम ऐसी हिम्मत कर भी नहीं सकते कि हम एक
साधु के लिए, जो भगवान का भजन वगैरह करते हैं, तो उनके लिए हम इस तरह से कुछ घूस वगैरह ले। सो जो पुलिस वाले थे उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने गुरु महाराज को कहा कि प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, ये स्थिति है यहाँ की। तो इस तरह से उन पर बहुत सारे ऑपोजिशन आ रहे थे। And he liked boldness in his disciples. Abhay heard of an occasion when one of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's disciples had been very outspoken at a public meeting and had denounced a highly regarded Mayavadi monk as a foolish priest. The remark had caused a disruption at the meeting, and some of the disciples reported the incident to Srila Bhaktisiddhanta, thinking he would be pleased that this his disciple had caused a disturbance. But Srila Bhaktisiddhanta was pleased and remarked, he has done well. His displeasure occurred rather when he heard of someone's compromise. इससे कि पहले हम आगे बढ़े, आप देखेंगे उस पुलिस वाले ने इस तरह से एक भक्त के अगेंस्ट इस तरह का कुछ भी गलत हो, उससे उन्होंने, जब उसके खिलाफ उन्होंने कुछ एक्शन लिया, नहीं तो वो चाहते तो, वो जो पुलिस वाला था वो चाहता तो वो, उसको क्या फर्क पड़ता, उसका तो 25,000 रुपये आ रहा था ना जेब में। पर क्योंकि आप देखेंगे इस तरह से भी जाने अनजाने में लोग भक्तों की सहायता कर देते हैं, तो उनका बहुत बड़ा सुकृत इससे बन जाता है। सोचिए, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। उनकी उस पुलिस वाले ने इस तरह से सहायता की, तो सोचिए ना, इट इज वेरी वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। देखिए, हर कोई ही जो भगवान, सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उसको तो भगवान अपने प्राणों से भी ज्यादा मतलब प्राणों से भी ज्यादा भगवान को वो व्यक्ति प्रिय है। भगवान स्वयं ये बात बताते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय वस्तु या व्यक्ति की इस तरह से सहायता कर रहा है, तो सोचिए वो व्यक्ति उसको कितना प्रिय होगा। तो देखिए, भक्तों से तो कभी भी द्वेष करना ही नहीं चाहिए। वी शुड नेवर क्रिटिसाइज डिवोटीज, नेवर एवर। जब भगवान ही, जो भी भक्त है उसका कुछ दुर्गुण नहीं देखते हैं, हमेशा बस ये देखते हैं कि वो मेरी सेवा कर रहा है, क्या सेवा वो कर रहा है, तो हमारा मतलब कहाँ पर ही कुछ है। लेकिन अगर हम इस तरह से भक्तों में दोष देखते हैं, तो फिर वो हमारी भक्ति के लिए ही घातक होता है, हमारी भक्ति उससे डाउन होती है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी, उसमें महाराज बता रहे थे that never find faults in devotees। नहीं तो भगवान मतलब भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करे, और उससे उस व्यक्ति की भक्ति कुंठित हो जाती है। भगवान सारा जो ज्ञान है उसको ढक लेते हैं। बहुत मतलब बच के रहना चाहिए इन सारी चीजों से। यस। सो मूविंग फॉरवर्ड, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को उनके जो शिष्य थे, उनकी बोल्डनेस भी बहुत पसंद थी। अब मैंने एक बार सुना था, एक ओकेजन पर, जब श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती के जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने मतलब पब्लिक में मीटिंग हो रही थी, वहां पर कैसे उन्होंने एक मायावादी सन्यासी का जो भी उसके सिद्धांत थे उसको कैसे ध्वस्त कर दिया, और उस मतलब बताया दैट ही इज अ फुलिश प्रीस्ट। इस तरह से उसके जो भी सिद्धांत, मतलब जो भी उसका मायावादी फिलॉसफी है, उसका खंडन करके he regarded him as a foolish priest।
तो इसकी वजह से उस मीटिंग में बहुत मतलब लोगों की, क्या बोलेंगे उसको, जैसे कुछ भी आप सोचिए ना, पब्लिक बैठी है इकट्ठा होकर, भीड़ है बहुत, और कुछ वहां पर ऐसी बात हो जाए तो पूरे की पूरी जो पब्लिक है वो कितना मतलब हाय तौबा करते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा था इस मीटिंग के अंदर, कॉज अ डिसरप्शन। और कुछ जो डिसाइपल्स थे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के, उन्होंने इसके बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो जो उनके शिष्य थे जिन्होंने मायावाद सन्यासी का इस तरह से खंडन किया था उनकी फिलॉसफी का, तो उन्होंने सोचा था कि मेरे गुरु महाराज तो मुझसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि मेरे इस तरह से बोलने से, इस तरह से यहाँ पर हल्ला हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वॉज वेरी प्लीज्ड एंड ही रिमार्क्ड ही हैज डन वेल, ने बहुत अच्छा किया। तो देखिए, मैं चैतन्य चरितमृत का जो इंट्रोडक्शन है उसमें पढ़ रही थी मैं, यहाँ पर मेंशन है ये चीज। और आपने ये बात पहले भी कभी सुनी होगी कि हमारा, अगर हमें गुस्सा आता है तो ये जो गुस्से की प्रवृत्ति है, ये जो भी मायावादी है या अभक्त है, वो जो भी उल्टा पुल्टा भगवान के बारे में बोलते हैं या जो भगवान के भक्तों के द्वेषी होते हैं, हमें हमारा गुस्सा वहां पर लगाना चाहिए। वह भी भक्ति है। पर वहां पर देखिए, देख लेना चाहिए, मतलब उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो ये चीज देख लेना चाहिए कि हम, मतलब हमें सामर्थ्य है या नहीं इस तरह से हम हमारा गुस्सा प्रदर्शित करें। ये चीज चेक कर लेना चाहिए। नहीं तो आप किसी व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी वो उल्टा पुल्टा बोल रहा है, वहां से आप चले गए, तो यह भी तो आपका गुस्सा प्रदर्शन करना हुआ उस व्यक्ति के प्रति कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो उसका एक तरह से हम असम्मान करना हुआ। वो कुछ बात आपसे कह रहा है, आप उसकी बात नहीं सुन के आप बस चले गए वहां से। तो ये भी एक तरीका है। पर ये बात समझनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के भक्तों के विषय में या भगवान के विषय में गलत बात बोल रहा है तो उसको सुनना भी अपराध है भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। तो सुनना नहीं चाहिए ये सारी बातें। अगर सामर्थ्य हो तो उसको, उनको चुप करा देना चाहिए या फिर वहां से चले जाना चाहिए। Srila Prabhupada. When my Guru Maharaj was present, even big scholars were afraid to talk with even his beginning students. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब मेरे गुरु महाराज वहां रहते थे तो बड़े बड़े जो विद्वान होते थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स, वो मेरे गुरु महाराज के जो स्टूडेंट्स होते थे, मतलब शुरू के स्टूडेंट्स, उनसे बात करने में भी डरते थे। गुरु महाराज से बात करने की तो दूर की बात है। माय गुरु महाराज वॉज कॉल्ड लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। आपने सुना भी होगा ये, श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? जिसमें दुनिया भर का सब कुछ ज्ञान, सारे टॉपिक्स जितने भी है वो उसमें स्टोर्ड रहते हैं। सो गुरु महाराज वॉज कॉल्ड लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, जीवित एनसाइक्लोपीडिया। He could talk with anyone on any subject. He was so learned and no compromise. So called saints, avatars, yogis, everyone who was false was an enemy to my Guru Maharaj. He never compromised. Some God brothers complained that this preaching was a chopping technique and it would not be successful. But those who criticized him fell down. तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी किसी भी विषय में बात कर सकते थे, कोई भी टॉपिक उनके सामने ला दिया जाए। पर ऑफ कोर्स भगवान के संबंध की यहाँ बात हो रही है, ये नहीं कि अभी कौन सी फेमस मूवी चल रही है तो उसके बारे में अभी बात की जाए तो बता देंगे कि हाँ ये मूवी चल रही है, अभी ये मूवी अभी आई है, रिलीज हुई है। ये सारी बातें नहीं बोली जा रही है। एनी टॉपिक मतलब शास्त्र की बात, शास्त्र के सब्जेक्ट में
किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते थे। ही वॉज सो लर्नेड, और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे शास्त्र की बातों से। तो जो भी सो कॉल्ड साधु या अवतार, कि हम इनके अवतार हैं, उनके अवतार हैं, या योगी, जो भी व्यक्ति इस तरह से फेक था, मतलब ढोंगी बोल सकते हैं, वो श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी का कह सकते हैं शत्रु था। वो शत्रुता मोल ले रहा था वास्तव में उनसे। सो वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उनके जो कुछ गॉड ब्रदर्स थे, उन्होंने कंप्लेन भी किया था इसके विषय में, कि इनका जो प्रचार करने का जो तरीका है, इट इज लाइक चॉपिंग टेक्निक। सबकी जो बातें हैं, सिद्धांत है, उसको काट के चलता है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन वास्तव में जो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इस तरह से क्रिटिसाइज करते थे, यहां तक कि उनके खुद के गॉड ब्रदर्स, गुरु भाई, दे ऑल्सो फेल डाउन। उनका खुद का ही पतन हो जाता था। जो भी श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विरुद्ध कुछ बोलता था, उनको क्रिटिसाइज करता था, तो वास्तव में उस व्यक्ति का खुद का ही पतन हो जाता था। तो ये बात समझनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति भक्तों का अपराध करता है, उसका वास्तव में खुद का ही पतन होता है। कृष्णा नेवर टॉलरेट्स दिस, कि कोई व्यक्ति उनके भक्तों का कुछ कुछ भी गलत करे, कुछ भी अपराध करे। Srila Bhaktisiddhanta was known as the Simha, lion guru. On occasion, when he saw someone he knew to be a proponent of impersonalism, he would call that person over and challenge. Why are you cheating the people with Mayavadi philosophy? He would often tell his disciples not to compromise. Why should you go flatter? He would say, you should speak the plain truth without any flattery. Money will come anyway. तो श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी को लायन गुरु भी कहा जाता था। तो जो भी निराकारवादी वगैरह होते थे, तो श्रीला भक्तिवेदांत उनको बुलाते थे और उनको चैलेंज देते थे, तुम आओ, उनसे बात करने के लिए उनको चैलेंज देते थे। और कहते थे कि तुम अपनी ये जो मायावाद है, इससे क्यों तुम लोगों को छल रहे हो। यहाँ तक कि वो अपने जो डिसाइपल्स हैं उनको भी इस तरह से कहते थे कि कभी भी इस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कि कोई व्यक्ति सामने वाला कुछ मायावाद बोल रहा है कि तुम भी भगवान बन जाओगे, या ब्रह्म हम सब एक ही है, इन सब चीजों के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमेशा जो सच है, शास्त्र की बात, वो सामने रखना चाहिए। तो बिल्कुल भी देखिए, सामने वाली ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, सामने वाले जो लोग हैं, उनकी बात में हाँ जी नहीं करनी चाहिए, उनकी गलत बात में, पैसे के लिए भी नहीं। मनी विल कम एनीवे। सी इफ यू आर प्लीजिंग कृष्णा, सो कृष्णा विल गिव यू एवरीथिंग। सभी वस्तुओं के स्रोत भगवान ही तो है, और सारे ही पैसे भगवान के ही तो हैं। तो अगर भक्त को जरूरत है लक्ष्मी की, तो भगवान क्यों नहीं व्यवस्था करेंगे। भक्त ऐसे करते भी नहीं है, पर यहाँ ये बात रखी जा रही है, बताई जा रही है, दैट वाई शुड यू गो फ्लैटर, यू शुड स्पीक द प्लेन ट्रूथ विदाउट एनी फ्लैटरी, मनी विल कम एनीवे। Whenever Srila Bhaktisiddhanta wrote or spoke the Vaishnava philosophy, he was uncompromising. The conclusion was according to the Shastra and the logic strong. But sometimes Abhay would hear his spiritual master express the eternal teachings in a unique way that Abhay knew he would never forget. Don't try to see God, Srila Bhaktisiddhanta would say, but act in such a way that God sees you. ये आपने सुना होगा। तो हमेशा जब भी श्रीला भक्तिसिद्धांत जो भी वैष्णव फिलॉसफी के विषय में कुछ लिखते थे या बोला करते थे, सो इट ही वॉज अनकॉम्प्रोमाइजिंग। कभी भी शास्त्र से विरुद्ध कुछ बात कभी भी नहीं होती थी। हमेशा उनके जो
लॉजिक्स थे, फिलोसफी थी, सब कुछ स्ट्रांग थी। कुछ बार जब अभय अपने गुरु महाराज को सुना करते थे, तो काफी सारी चीजें ऐसी स्ट्राइकिंग होती थी जिसको अभय कभी नहीं भूल सकते थे। जिसमें से एक बात यहाँ बताई जा रही है, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, तुम खुद इस तरह से सेवा करो कि भगवान तुम्हें देखे। तो देखिए, बिल्कुल बस थोड़ी सी अवेयरनेस होना जरूरी है। जब भी हम जप करने बैठे तो हमें अवेयर होना चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस लाना जरूरी है। और देखिए, ज्यादा अवेयरनेस कब आएगी, जब आप भगवान का फोटो सामने रखें। मैं खुद देख रही हूँ, मैंने यहाँ पर पंचतत्व का फोटो लगाया हुआ है। तो और यहीं पर बैठ के लाइक आई डू माई चांटिंग, आई डिस्कस माई क्लासेस, आई हियर माई क्लासेस, अटेंड माई क्लासेस। सो लाइक बार बार नजर वहां जाती है, तो हाँ दिमाग में आता है चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इज सीइंग मी, सो आई शुड एक्ट इन अ वे दैट ही इज सीइंग मी। बहुत अवेयरनेस आ जाती है आपका। आप एक ऐसा कॉर्नर सेट करना चाहिए भक्तों को, जहां पर आप डेली बैठे और आपकी साधना वही हो। सो आई हैव दिस स्मॉल टेबल हियर, एंड यहाँ पर ये लैपटॉप वगैरह सब सेट है, मैं यहीं पर बैठती हूँ, सारा सब कुछ। कुछ ज्यादा बड़ा कमरा है भी नहीं, छोटा सा ही कमरा है। तो हाँ, इस तरह से एक कॉर्नर सेट करना चाहिए। और फोटो मैंने अभी कुछ, मतलब 1 या 2 महीने ही हुए होंगे, काफी टाइम से मैंने सोचा हुआ था लगाने का, पर अब जब मैंने ऐसा किया तो मैं देख पा रही हूँ, अवेयरनेस आती है दैट यस महाप्रभु इज सीइंग, महाप्रभु देख रहे हैं। करना चाहिए इस तरह से। यस, श्रील भक्ति सिद्धांत condemned temple proprietors who made a business of showing the deity for a living. To be a sweeper in the street was more honorable, he said. He coined a Bengali phrase, Shalagram Dwar Badam Bhanga. The priests are talking the Shaligram deity as a stone for cracking nuts. In other words, if a person shows the shalagram form of the Lord or any form of the deity simply with a view to make money, then he is saying the deity not as the Lord but as a stone, a means for earning his livelihood. Yes. See, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बहुत ही अमेजिंग चीज यहाँ पर एक रख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, स्पेशली पुजारी की बात की जा रही है, तो उन मतलब जो आप देखेंगे मंदिर होते हैं आसपास में, तो वहां पर हर एक मंदिर में कोई ना कोई पुजारी होता ही है। सो हु इज द टेम्पल प्रोप्राइटर बेसिकली। तो अगर वो इस तरह से मंदिर बनाया हुआ है, वहां भगवान का विग्रह रखा हुआ है, एंड ही इज डूइंग इट एज अ मीन्स ऑफ हिज लिविंग, मतलब बिजनेस चले, बढ़िया लोग आए चढ़ावा दे, इस वजह से भगवान का विग्रह वो रखा हुआ है, तो इससे अच्छा तो ये होगा कि वह सड़क पर जाकर, मतलब इससे अच्छा, मतलब इससे ज्यादा सम्माननीय वो व्यक्ति होगा जो सड़क पर झाड़ू लगा रहा है। समझ रहे इस बात को? एक व्यक्ति, वह व्यक्ति जो टेम्पल वगैरह मंदिर वगैरह खोला हुआ है, वहां भगवान का विग्रह रखा हुआ है, फॉर फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द डीटी, तो उस व्यक्ति से अधिक सम्माननीय वह व्यक्ति है जो सड़क पर झाड़ू लगाकर अपनी जीवनी चला रहा है। फिर उन्होंने एक बंगाल में एक फ्रेज कहा कि ये जो पुजारी है, ये शालिग्राम डीटी ले रहे हैं एज अ स्टोन फॉर क्रैकिंग नट्स। मतलब शालिग्राम भगवान है, तो उनको भगवान की तरह ना देखकर, एक जो आप देखेंगे एक जो पत्थर होता है जिसको हम अखरोट तोड़ने के काम में लेते हैं, तो वास्तव में वो जो पुजारी है वो शालिग्राम डीटी को इस तरह से देख रहा है
ही इज टेकिंग इट एज अ स्टोन फॉर क्रैकिंग नट्स। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति जो भगवान का शालिग्राम जो डीटी है, शालिग्राम शीला है, अगर उसको वो एक पैसे बनाने का जरिया देख रहा है, तो वो वास्तव में भगवान को नहीं, सिर्फ वो एक पत्थर को देख रहा है। भगवान नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर मात्र है जिससे मुझे पैसा मिलेगा और मैं अपनी जीवनी चला सकूंगा। और क्या आप ऐसे लोग देखे हैं? देखते ही हैं। कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे, देखिए मैंने तो ये बात देखी है कि इस्कॉन के अलावा जिस तरह से इस्कॉन में जो भक्त हैं, जो आदर बुद्धि उनकी भगवान के प्रति होती है, जो कि शास्त्र पढ़ने से आई है, आप बाकी सारे मंदिरों में देखेंगे, जो भी आपके रोड पर होंगे या कहीं पर भी होंगे, आई मीन नॉट ऑल दी टेम्पल्स, पर ज्यादातर आप देखेंगे शास्त्र वगैरह तो वो कुछ पढ़ते नहीं है, तो उनकी वैसी कोई आदर बुद्धि नहीं होती है। मैं भगवान की बात कर रही हूँ, देवी देवताओं का तो फिर कहना ही क्या। Abhay had the opportunity to see his spiritual master deal with the nationalist Subhash Chandra Bose, who had been Abhay's schoolmate at Scottish Churches College. ये बात आपको मतलब हमने डिस्कस की थी। सुभाष चंद्र बोस, who is a freedom fighter probably, वो अभय के स्कूल में ही पढ़ते थे। So now he got this opportunity to see his spiritual master deal with Subhash Chandra Bose. Bose had come in a somewhat critical mood, concerned about Srila Bhaktisiddhan's recruiting young man into religious life. Srila Prabhupada. Subhash Chandra Bose came to my Guru Maharaj and said, "So many people you have captured, they are doing nothing for nationalism." My Guru Maharaj replied, "Well, for your national propaganda, you require very strong man, but these people are very weak." So you can see they are very skinny. So don't put your glance upon them. Let them eat something and chant Hare Krishna. In this way, he avoided him. Srila Bhakti Siddhanta used to say that when the day came when High Court judges were devotees of Krishna with Vaishnava tilak on their foreheads, then he would know that the mission of spreading Krishna consciousness was becoming successful. तो हुआ क्या था, ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये इनको थोड़ी चिंता हो रही थी। क्या चिंता हो रही थी कि भाई ये जो शिला भक्ति सिद्धांत हैं, ये युवा पीढ़ी को भक्ति में लगा रहे, तो उनको चिंता हो रही थी इस बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया है, ये नेशनल के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, भारत के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही अमेजिंग रिप्लाई किया कि देखिए, आपका ये जो नेशनल प्रोपेगेंडा है, जो भी ये मूवमेंट है, इसमें स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है, हट्टे कट्टे जो लोग होते हैं। और इन लोगों को देखिए आप, ये बेचारे कितने कमजोर हैं, कितने पतले हैं, दे सी दे आर वेरी स्किनी। तो आप इन पे अपनी नजर मत डालिए, इनको कुछ खाने दीजिए और इनको हरे कृष्णा करने दीजिए। तो इस तरह से ही अवॉइडेड हिम। ये बहुत अमेजिंग चीज है। वेरी नाइस रिप्लाई। ये देखिए है एक तर्क ही कि भाई कहाँ आपके आपके मिशन के लिए कितने हट्टे कट्टे लोग चाहिए, ये बेचारे ये तो कमजोर है, कितने देखिए पतले हैं, इनको कुछ खाने दीजिए, हरे कृष्णा करने दीजिए। आपके मिशन के लिए ये काम के लायक नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे आपका मिशन। सेम वे आप देखेंगे, मुझे इससे महाप्रभु का महाप्रभु का पास टाइम याद आ रहा है, जहाँ पर महाप्रभु जो प्रकाशानंद सरस्वती है, मायावाद सन्यासी थे वो, तो वो आते हैं महाप्रभु के पास और कहते हैं कि अरे, मतलब when at the very first time they saw
महाप्रभु, महाप्रभु इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा। आप देखेंगे चैतन्य चरितमृत भी अगर आपके पास में है, उसमें महाप्रभु का इतना सुंदर फोटो दिया हुआ है, जिसमें महाप्रभु नीचे बैठे हुए हैं। आपने ये पास्ट टाइम सुना होगा कि जहां पर पैर धुलते हैं, वहां पर महाप्रभु जाकर बैठ गए थे। सारे जो सन्यासी थे वो ऊपर बैठे थे, लेकिन महाप्रभु वहां नीचे जाकर बैठ गए थे। तो महाप्रभु को देखकर सब के सब मतलब बहुत ही आकर्षित लग रहे थे महाप्रभु। महाप्रभु का जो दिव्य शरीर से जो तेज था ब्रह्म ज्योति का, वो प्रकाशित हो रहा था। और ये जो मायावादी होते हैं, ये तो वैसे भी ब्रह्म की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, उनको आकर्षण होता है बहुत इनका। तो महाप्रभु को देखकर देवर लाइक स्टन्ड कि भाई ये कौन है इतने तेजस्वी। तो उसमें फोटो दिया हुआ है जिसमें महाप्रभु नीचे बैठे हैं और प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के हाथ को इस तरह से पकड़ रहे हैं कि उठो, आप क्या ये नीचे क्यों बैठे हो, आप इतने अच्छे सन्यासी हो, नीचे क्यों बैठे हो, आओ हमारे साथ बैठो। जिसमें इस तरह से शिला प्रभुपाद जी ने फोटो दिया है, महाप्रभु का हाथ पकड़ के वो उठा रहे हैं उनको। वेरी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। तो उसमें क्या हुआ था आप देखेंगे, क्या बता रही थी मैं। हाँ, तो वो जो मायावादी सन्यासी है वो इस तरह से कह रहे थे कि आप ये क्या हरे कृष्णा करते हैं, आप सन्यासी हैं, और लेकिन आप ये क्या हरे कृष्णा चैंटिंग करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। तो महाप्रभु उनको इस तरह से बोल रहे थे कि हाँ, मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि मैं पागल हूँ, मुझमें बुद्धि नहीं है कि मैं कुछ वेद का पठन पाठन कुछ कर सकूं। मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा है that you are fool, you just chant हरे कृष्णा, तुम सिर्फ हरे कृष्णा ही कर सकते हो। अब बताइए, महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, पर ये कुछ स्वीट पास टाइम्स हैं जिनको पढ़कर ही आप देखिए कितना मतलब बहुत अमेजिंग लगता है। तो सेम वे यहाँ पर भी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तरह से सुभाष चंद्र बोस को टाल रहे थे। ठीक है, श्रीला भक्ति सिद्धांत हाँ, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक और बात क्या बताते हैं कि जब वो दिन आएगा जहां पर जो बड़े बड़े जज होते हैं, जो बैठते हैं कोर्ट में, बोलते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर, तो वो जज कोर्ट में बैठे हुए, हाई कोर्ट में बैठे हुए जो जज है, जब वो भगवान कृष्ण के भक्त हो जाएंगे ना, पुटिंग वैष्णव तिलक एंड स्टफ, और बैठकर वकालत कर रहे हैं, तब समझा जाना चाहिए कि ये जो कृष्ण भावनामृत का ये जो आंदोलन है, जो प्रचार कार्य है, यह सफल हुआ है। बताइए कितना डिफिकल्ट है ना। यू वोंट बिलीव दिस, अभी कुछ दिन पहले ही मैं इस पर विचार कर रही थी। सोचिए अगर किसी भी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भगवान का भक्त हो जाए, तो क्योंकि ही इज अ लीडर, तो अब लीडर भगवान का भक्त हो गया, तो जो लीडर के फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो जब वो इस तरह से उनको भी लीड करेगा, सोचिए ना कितना सुंदर ये बात हो जाएगी ना। अगर इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से रूल निकाल दिया जाए कि कोई भी पशु हत्या नहीं करेगा, मांस भक्षण कोई भी नहीं करेगा, 4 नियम का पालन करेगा हर व्यक्ति, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, ये सारी चीजें अगर फॉलो करवाई जाए तो कितना सुंदर वातावरण हो जाएगा, इतनी प्योरिटी हो जाएगी। आई नो दिस इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पर सच में मेरे माइंड में दिमाग में आ रहा था कि सोचिए कोई भी किसी भी देश का, जैसे इंडिया की बात ले लीजिए, कोई भी प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो भगवान के भक्त हो जाए और वो कंपलसरी कर दे, गवर्नमेंट से रूल आए कि हर स्कूल में प्रेयर में हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए, और भगवत गीता का एक श्लोक तो पढ़ाना ही चाहिए। ये सारी चीजें अगर सोचे कंपलसरी हो जाए तो कितना ब्राइट फ्यूचर है, सब के सब भगवान के धाम चल जाएंगे। पर
पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, लेट्स सी। अगर भगवान मेरी इच्छा नोट कर ले। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। He said that Jesus Christ was a शक्तावेश अवतार। देखिए, ये चीज हमने कल डिस्कस की थी। जो जीसस क्राइस्ट है, ही वॉज अ शक्तावेश अवतार, एन एम्पावर्ड इनकारनेशन ऑफ गॉड। हाउ कैन इट बी अदरवाइज? He said he sacrificed everything for God. तो देखिए, कल ये बात चल रही थी, कल क्रिसमस डे था। तो जो जीसस क्राइस्ट है वो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। और उन्होंने क्या शिक्षा दी? उन्होंने यही शिक्षा दी कि जो हर कोई जो व्यक्ति है वो अपने पाप कर्म छोड़कर भगवान के शरणागत हो, भगवान की शरणागति स्वीकार करे। इस तरह से, लाइक, इट वॉज हिज प्राइमरी मैसेज कि हर कोई व्यक्ति अपने पाप कर्म छोड़कर भगवान भगवान की शरण ले। और बाइबल में भी बताते हैं दैट ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, सो ही इज द मैसेंजर ऑफ कृष्णा, एंड ही सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर गॉड। सेक्रीफाइस्ड कैसे? उन्होंने कितना टॉलरेट किया, उनकी कितनी निंदा लोग करते थे, कर रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, ये सारी चीजें। तो ही टॉलरेटेड दिस। और आप सोचिए, क्या कोई सामान्य व्यक्ति टॉलरेट कर सकता है इस तरह से निंदा या जो भी टॉर्चर उनके साथ में किए जा रहे थे? कोई भी सामान्य व्यक्ति टॉलरेट नहीं कर सकता ये सारी चीजें। बट बिकॉज ही वॉज द एम्पावर्ड इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, दैट्स वाई, एंड ही वॉज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ वैष्णवा, इस वजह से वो इस तरह से आचरण कर पाए थे। In his scholarly language, he declared the materialistic demeanor cannot possibly stretch to the transcendental autocrat. But sometimes in speech, he phrased it in a more down to earth way. The mundane scholars who are trying to understand the Supreme Lord by their senses and mental speculation are like a person trying to taste the honey in a bottle by licking the outside of the bottle. Philosophy without religion, he said, is dry speculation, and religion without philosophy is sentiment and sometimes fanatism. तो देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवान को अपने मनोधर्म से, अपने इंद्रियों से या अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से, अपनी मन गढ़ंत बातों से भगवान को समझने का, अपने मन गढ़ंत तर्कों से भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है, तो वो किसकी तरह हुआ? कोई भी व्यक्ति शहद चखने का प्रयास कर रहा है, पर कैसे? बॉटल पैक है, सील्ड है, और शहद उसको दिख रहा है कांच की बोतल में, तो उसको बाहर से वो चाट रहा है। तो क्या इस तरह से कभी वो शहद को चख पाएगा? शहद की मिठास को चख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है, वो कभी भगवान को नहीं समझ सकता। फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज ड्राई स्पेकुलेशन। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बता रहा है, लेकिन उसमें कुछ शास्त्र की बात ही नहीं है, उसके विरुद्ध वो कुछ बता रहा है, सो दैट इज ड्राई स्पेकुलेशन। कोई मतलब नहीं है उसके मन गढ़ंत बातों का। एंड रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट एंड समटाइम्स फेनेटिज्म। ये चीज आप देखेंगे, काफी लोग होते हैं जो अपनी कुछ फिलोसफी बोलेंगे, लेकिन क्योंकि वो शास्त्र की बात नहीं होगी, तो उसमें कुछ उनकी भावुकता होगी या ये सारी चीजें होगी। जैसे प्रभु जी एक बार बता रहे थे, कोई माता जी उनको बोल रही थी कि आप, बाके बिहारी बोल रही थी शायद, आप बाके बिहारी को मेरे बारे में बता दीजिएगा कि मैं उनकी याद में तड़प रही हूँ। पता नहीं ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। अब सोचिए, ये सारी सेंटिमेंट्स नहीं है। तो क्योंकि ये शास्त्र, ये जो बातें हैं, ये शास्त्र से अलग है। जिस तरह से लोग
बिना मतलब की भावुकता प्रदर्शित करते हैं। उनसे कहो भाई हरे कृष्णा जपो, भगवान भगवान की तड़प में इतना ही तड़प रहे हो तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है कि आप उनके नामों का जप करो। सो व्हाई डोंट यू चांट हरे कृष्णा? भगवान के विषय में क्यों नहीं सुनते हो? लेकिन इस तरह से वो भावुकता प्रदर्शित करते हैं। और पढ़ लिया जाना चाहिए क्या? एक पेज और पढ़ लेते हैं चलिए। Srila Bhakti Siddhant said that the whole world was simply a society of cheaters and cheated. He gave the example that loose women often visit certain holy places in India with the idea of seducing the sadhus, thinking that to have a child by a sadhu is prestigious. And immoral men dress themselves as sadhus, hoping to be seduced by the cheating women. His conclusion: a person should aspire to leave the material world and go back to Godhead. Because this material world is not a fit place for a gentleman. देखिए बहुत ही सुंदर शिक्षा यहाँ पर बताई जा रही है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा जगत है, पूरे जगत की बात हो रही है, इट इज अ सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। इसका अर्थ क्या है? ये ऐसे लोगों से भरा है पूरा जगत जो लोगों को छलना चाहते हैं और जो लोग खुद चाहते हैं कि वो छले जाएं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो पूरा जगत है ये ऐसे लोगों से भरा है जहां पर लोग दूसरों को छलना चाहते हैं और लोग छले भी जाना चाहते हैं। चीटर्स एंड चीटेड। जैसे हमने ये बात सुनी है, कोई भी व्यक्ति है वह क्यों एक मायावादी संप्रदाय में, क्यों नहीं वो भक्तों के संग में आकर हरे कृष्णा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है? क्यों वो मायावादियों को ज्वाइन किया हुआ है? क्योंकि वह खुद चाहता है कि वह इस तरह से चीट हो, तो उसके लिए ऐसा ही अरेंजमेंट करवा दिया गया कि वो ऐसे लोगों का संग करे जहां पर वह चीट ही हो, उसको सत्य का बोध कभी हो ही ना कि भगवान कौन है और भगवान की सेवा करके वह संतुष्ट हो सकता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे एक जो महिला होती है गिरे हुए चरित्र की, तो क्या करती है वो जो भी तीर्थ स्थान होते हैं वहां पर जाती है। और किस उद्देश्य से जाती है? कि जो भी साधु लोग हैं, भगवान के भक्त वगैरह, उनको सिड्यूस करने के उद्देश्य से जाती है। सिड्यूस मतलब खुद के आकर्षण से, कि सामने वाला जो भी साधु है वो आकर्षित हो जाए और उस आकर्षण के बाद में वह एक संतान की प्राप्ति कर सके। तो एक साधु से संतान प्राप्त होने का अर्थ क्या है? मतलब ये बहुत प्रेस्टिजियस चीज मानी जाती है, बहुत बढ़िया बात है। और उसी तरह से तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक केस हुआ कि एक जो महिला है वो इस तरह से छलना चाहती है किसी साधु को ताकि उसे संतान की प्राप्ति हो जाए। उसी तरह से एक साधु, मतलब वास्तविक साधु की बात नहीं हो रही है, एक ऐसा व्यक्ति जो साधु का खाली वेश धारण किया हुआ है, तो वह भी चाहेगा कि ऐसी महिला से वो आकर्षित हो जाए। तो 10 ये बात समझ आ रही है दैट हाउ दिस प्लेस दिस वर्ल्ड इज अ सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। इस पर देखिए ये बात आ रही है, तो मतलब इस पर मैं एक बार विचार कर रही थी कि देखिए हमसे जैसे कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ भी गलती वो हो सकती है, तो हमसे वो गलती हुई, हमने उसको किया, मतलब वो जो गलती थी, जो भी वो क्रिया है, वो हमारे एक्शन में आई और वो हमारी मर्जी से ही आई। हम कभी भी सामने किसी व्यक्ति को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारी खुद की भी इच्छा थी तभी तो वो जो भी चीज है, जो भी क्रिया है, वो हमारे एक्शन में आई। कुछ भी वो चीज हो सकती है, जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए, आपने प्रण लिया
आप भगवान को बिना अर्पित किए कभी नहीं खाएंगे। पर अब हुआ क्या, बाहर से जलेबी आई बढ़िया गरम गरम, सर्दी का मौसम है अभी, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई होप किसी भी भक्त का मन ना कर जाए। बाहर से जलेबी आई, आज तो एकादशी भी है, मुझे नहीं बजाना चाहिए, बट आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अब पता है भाई बाहर से आई है, भगवान को अर्पित भी नहीं है, पर क्योंकि मन चल गया तो बस, आनी और। अब आप सामने वाले व्यक्ति को इसके लिए वो नहीं कर सकते हो, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भाई तुम क्यों लेकर आए जलेबी, तुमको पता है ना मैं भगवान का भोजन खाता हूँ, मैं सिर्फ भगवान को अर्पित भोजन पाता हूँ मैं, फिर तुम क्यों लेकर आए। तो भाई तुम मतलब आप पाते हैं तो जरूरी थोड़ी है वो पाता है, पर क्योंकि हमारी भी इच्छा थी इस वजह से वो एक्शन में आया और हमसे वो गलती हुई। सो आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। हम खुद भी चीटेड होना चाहते हैं, इस वजह से सामने से चीट ऐसी ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम चीट नहीं होना चाहते तो फिर हम उस चीज से प्रभावित ही नहीं होंगे। जैसे हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल है, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त है ही, स्वयं ब्रह्मा जी है, पर बिकॉज ही वॉज टोटली एब्सॉर्ब इन हिज हरि नाम, भगवान का जप करने में पूरी तरह से एब्सॉर्ब थे, तो अब वो जो भी आई भी थी वो वैश्या, तो उनसे वो प्रभावित ही नहीं हुए, बल्कि उनके प्रभाव से वो जो वैश्या थी वो भगवान की भक्त हो गई। तो देखिए कंक्लूजन, शिला भक्ति सिद्धांत यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है उसका, ही शुड ओनली एस्पायर फॉर वन थिंग, जल्दी से जल्दी इस भौतिक जगत को छोड़कर वो भगवान के पास लौट जाए। क्योंकि ये भौतिक जगत, यहाँ पर भौतिक जगत में ये एडजस्ट, मतलब भौतिक जगत में हम कुछ भी सोच रहे हैं ना कि हम ये प्लान करके यहाँ पर ऐसे एडजस्टमेंट कर लेंगे वैसे एडजस्टमेंट कर लेंगे, वास्तव में ये सही जगह नहीं है फॉर अ जेंटलमैन लाइक अस, वी आर जेंटल पीपल राइट। तो वास्तव में हमारे हमारे रहने योग्य ये जगह नहीं है। श्री भक्तिवेदांत is Thakur is saying this material world is not a fit place for a gentleman. So a person should aspire to leave this material world and go back to Godhead. Very beautiful point. ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है we will do it in our next class. कृष्णा विलिंग, चलिए एक और पढ़ लेते हैं, नहीं तो अभी माया में जाएंगे, पढ़ लेते हैं एक और। Abhay saw that when disciples asked his spiritual master about something in the future, he never replied, "Yes, it is going to happen." Or, "Yes, we are going to do it." Rather, he would say, "Yes, if Krishna desires, it may be." Although in his young years he had been an astrologer and able to predict the future, he had given it up. तो अभय ने हमेशा ये चीज देखा था, जब भी श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के जो भी शिष्य थे वो कुछ भी आगे का कुछ प्लान करते थे कि हाँ हम आगे ये करेंगे वो करेंगे, तो हमेशा अभय के गुरु महाराज क्या रिप्लाई करते थे, जो हम भी फॉलो करने का ट्राई करते हैं सभी भक्त, कि हाँ, मतलब इस तरह से कभी भी उन्होंने नहीं देखा कि उनके गुरु महाराज इस तरह से रिप्लाई कर रहे कि हाँ ऐसा होगा, हाँ हम ऐसा करेंगे, पक्का है, हाँ हम ऐसा करेंगे, नहीं, वो हमेशा इस तरह से रिप्लाई कर देते, हाँ अगर कृष्ण ने चाहा तो, यस इफ कृष्णा डिजायर्स, यस इफ कृष्णा इज विलिंग। वो मतलब जो शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर हैं वे एक एस्ट्रोलॉजर भी रह चुके हैं और उन्होंने ऑलरेडी ही भविष्य प्रेडिक्ट कर लिया था आगे जाकर क्या होना है, पर फिर भी, सॉरी कर लिया नहीं था, मतलब उनके पास में ऐसी थी क्षमता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा वो उसको प्रेडिक्ट कर सके, लेकिन फिर भी हमेशा वो यही बात कहते कि हाँ
अगर भगवान ने चाहा तो ये होगा, अगर कृष्ण ने चाहा तो ये होगा। Srila Bhakti Siddhant was a lifetime brahmachari and was very strict about avoiding association with women. Once Abhay was sitting with his spiritual master when another disciple was present along with his young wife. The wife asked Srila Bhakti Siddhant if she might speak with him privately, but he replied, "No, whatever it is, you can say, you can ask here. I cannot see you in private." Abhay was impressed by this. Since Srila Bhakti Siddhant was in his 60s and the girl could have been his granddaughter, regardless, he would not speak with any women alone. तो अन्यत क्या होता है, मतलब यहाँ बताया जा रहा है श्रील भक्ति सिद्धांत आजीवन ब्रह्मचारी रहे और बहुत ही ज्यादा वे स्ट्रिक्ट थे टू अवॉइड एसोसिएशन विथ विमेन। तो एक बार क्या हुआ था, अब है अपने गुरु महाराज के साथ बैठे थे और एक और दूसरे उनके शिष्य आए अपनी वाइफ के साथ में, अभी नई नई शादी हुई थी, मतलब पता नहीं हुई थी या नहीं, बट इट इज मेंशन्ड हियर दैट ही केम विथ हिज यंग वाइफ। तो उनकी वाइफ ने पूछा गुरु महाराज से कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ अलग से, प्राइवेटली। तो उन्होंने कहा नहीं, जो भी बात करनी है, जो भी पूछना है यहाँ पर पूछो, आई कैन नॉट सी यू इन प्राइवेट। सो दिस इम्प्रेस्ड अभय वेरी मच। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस टाइम पर ही वॉज इन हिज 60s, 60 के करीब उनकी उम्र थी, और वो जो स्त्री थी वो उनकी पोती की उम्र की थी, ग्रैंड डॉटर। लेकिन फिर भी ही वुड नॉट स्पीक विथ एनी विमेन अलोन। कभी भी वो किसी भी स्त्री के किसी भी स्त्री से इस तरह से एकांत में वार्ता नहीं करते थे। Srila Bhakti Siddhant liked to make his disciples into sannyasis. But one day, one of his sannyas disciples was forcibly dragged away by his wife. In tears, Srila Bhakti Siddhant lamented that he was unable to save that soul. Yet he did not speak despairingly of Krishna conscious family life. I would have sex hundreds of times if I thought that I could raise Krishna conscious children. तो देखिए श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये चीज बहुत पसंद आती थी, मतलब उनको किस बात में रुचि थी कि वो अपने शिष्यों को सन्यासी बनाए। लेकिन एक बार उन्हीं के जो सन्यासी शिष्य थे वो ही वॉज फोर्सिबली ड्रैग्ड अवे बाय हिज वाइफ। अब ये पता होना चाहिए कि जो भी वाइफ वगैरह होती है उनके कुछ इस तरह के टंटे होते हैं, मतलब अपने जो भी हस्बैंड है उनको बहुत इमोशनली अटैच्ड वो कर लेती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ उनके साथ में। तो वो सब कुछ अपना भक्ति वक्ति छोड़कर चले गए वापस से गृहस्थी संभालने। सो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर वाज लेमेंटिंग इन टीयर्स, आंसुओं से रो रहे थे कि मैं उस जीवात्मा को नहीं बचा पाया, वो माया में चला गया। देखिए कोई भी व्यक्ति, अच्छा देखिए सन्यासी होकर कोई जाकर औरत के साथ रहे तो ये तो उसका पतन ही है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम में रह रहा है और वो बिल्कुल ही अपना भजन जीरो कर दे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गृहस्थी में रहो भाई, बढ़िया है, पर भगवान का भजन तो करना चाहिए ना। मतलब बढ़िया तो नहीं है, वो जंजाली है, पर भगवान का भजन तो करना चाहिए ना, ये नहीं भजन ही जीरो हो जाए। सो ही वॉज लेमेंटिंग। और उन्होंने ये भी बात कही कि अगर ये बात मतलब कंफर्म होती कि मतलब he would have intimated hundreds of times, वे काफी बार, हजारों बार श्री संग करते। अगर ये कंफर्म होता
कि कृष्णा कॉन्शियस संतान, एक कृष्ण भावना भावित संतान ही उत्पन्न होगी। अगर ये श्योरिटी होती, सो आई वुड हैव इंटीमेटेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, पर क्योंकि ये श्योरिटी नहीं थी तो इस वजह से मैं ब्रह्मचारी रह गया। इस तरह से श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं। He would send his brahmacharis out to sell the Gaudiya Math magazine and books, and even if a brahmachari were able to sell only one or two, it would please him very much. And he would exclaim, "You are so nice." In considering whether essays were worthy for publication, he would count how many times the word Krishna or Chaitanya had been used. If these holy names had been quoted sufficiently, he would say, "That's all right, this can be used." तो श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर अपने जो ब्रह्मचारी शिष्य हैं उनको बाहर भेजा करते थे पुस्तक वितरण के लिए। तो कभी कभी कोई ब्रह्मचारी सिर्फ एक या दो पुस्तक ही वितरण कर पाते थे, तब भी बहुत प्रसन्न होते थे श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर और कहते थे दैट यू आर सो नाइस। देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप एक किताब भी दे पाए, उसको कन्विंस कर पाए कि वो आगे होकर अपनी जेब से पैसा निकाल कर बुक ले रहा है। उसके घर में एक बार भगवत गीता चली गई, प्रभुपाद जी की कोई भी पुस्तक चली गई एक बार उसके घर में, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इन पुस्तकों के स्पर्श मात्र से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। और ये आप बात देखेंगे, कोई भी व्यक्ति के घर में अगर बुक एक बार चली गई तो आगे जाकर कोई ना कोई व्यक्ति उस घर में से भक्त होएगा ही, पक्का वो भक्ति में आएगा। कोई भी, चाहे ऐसा हो सकता है जो व्यक्ति किताब खरीद कर लेकर गया वो बेचारा माया में पड़ा, वो भक्ति नहीं कर रहा हो, फिर उस घर में से पक्का कोई ना कोई भक्त बनेगा आगे जाके। These books are not ordinary. This Lilamrit which we are discussing, this is manifestation of Srila Prabhupada himself. ऐसा कहा जाता है किन्हीं के भी घर पे अगर भगवत गीता है तो वास्तव में भगवान वहां पर है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता भगवान से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं है। प्रभुपाद जी की लीलामृत प्रभुपाद जी से भिन्न नहीं है, एंड फोटोज वगैरह भी। तो वो पक्का व्यक्ति भक्त बनेगा आगे जाके। तो प्रयास करना चाहिए इस तरह से। अगर वो खरीदे भी नहीं तो आप गिफ्ट कर सकते हैं, छोटी पुस्तकें तो ज्यादा महंगी भी नहीं होती है। सो यू कैन गिफ्ट दीज बुक्स एंड यू कैन मेक श्योर कि आप उसके साथ में पढ़े, कम से कम एक पेज डेली लेकर बैठ जाइए, क्या दिक्कत है। अगर लेकर नहीं बैठ सकते तो बढ़िया वॉइस नोट की इतनी बढ़िया सुविधा है, कभी भी आप एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मैं इस तरह से कर ही रही हूँ एक व्यक्ति के साथ में। तो जब भी मतलब हम टाइम एक डिसाइड हमने किया हुआ है कि हम एक पेज डेली डिस्कस करेंगे, मैं पढ़ती हूँ और मुझे जो भी पॉइंट लगता है कि हाँ ये बताना चाहिए, वॉइस नोट के थ्रू मैं बता देती हूँ। अब उनको जब टाइम मिले वो सुनकर रिप्लाई कर देते हैं। इस तरह से कृष्ण कथा सुन तो रहे हैं वो, और इस तरह से आप बोल रहे हैं तो आप तो खुद के प्योरिफिकेशन के लिए बोल ही रहे हैं। जितनी भगवान की कथा आप बोल रहे हैं आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है। ऐसे हम उनको कुछ लेक्चर भेजे तो वो नहीं सुनेंगे, आधे आधे एक एक घंटे के लेक्चर वो नहीं सुनेंगे, वो टाल देंगे कि भाई टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पर आप इस तरह से वॉइस नोट छोड़ेंगे या कुछ मैसेज टाइप करके भेजेंगे, उसको तो पढ़ के रिस्पॉन्ड करेगा ही व्यक्ति। तो ये बहुत ही सुंदर ट्रिक मुझे भगवान ने दी है। आपको भी, आप भी इसको अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे बहुत मतलब हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर एक दो बुक भी वितरण कर पाता था तो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रसन्न होते थे। ही वुड काउंट, और वो ये काउंट करते थे कि कितनी बार कृष्ण चैतन्य ये बोला जा रहा है, भगवान के ये जो नाम है ये बोले जा रहे हैं।
देखिए ये बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे 2 दिन पहले ही मतलब शिक्षा मिली। एक कोई व्यक्ति थे, वो मतलब मैं इंसिडेंट शेयर करके देन वी विल स्टॉप हियर, बिकॉज आई एम ऑल्सो टायर्ड नाउ। तो हाँ, क्या बात हुई थी, एक कोई भक्त थे, तो उनको किसी रिश्तेदार ने बुलाया था, उनके बच्चे का बर्थडे था, कि आप आइएगा, ऐसे हम कीर्तन करेंगे साथ में, कुछ कथा वथा करेंगे। तो वो भक्त खुश होकर चले गए, वाह बढ़िया, कथा वथा कीर्तन वीर्तन करेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद में, अब रिश्तेदारों का घर है, और भी अभक्त रिश्तेदार आए, तो उनके बीच में जाकर बैठ गए। अब वहां कुछ बात शुरू हुई, भौतिकतावादी। तो अब वो भौतिकतावादी वार्ता ही चलती गई, चलती गई, चलती गई, और वो भक्त भी कब उस भौतिकतावादी वार्ता में लग गए उनको पता ही नहीं चला। तो पूरा टाइम इसी में चला गया। फिर बाद में उन्होंने बोला चलो अब कीर्तन करते हैं, पहले बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो प्रसाद का टाइम हो गया ना, प्रसाद पाना चाहिए। तो ठीक है, फिर प्रसाद पाते पाते उसमें काफी लेट हो गया। फिर एंड में अब केक कटिंग का टाइम था, तो उसमें भी वो कीर्तन नहीं कर पाए। सो ही वॉज फीलिंग वेरी सैड कि मैं क्या योजना बना के गया था, और ये क्या हो गया, मैं तो कुछ भी कथा नहीं कर पाया, ना भगवान का कुछ कीर्तन हो पाया। सो ही वॉज शेयरिंग दिस इंसिडेंट, मतलब ये जो भी उनके साथ में हुआ, उन्होंने ग्रुप में शेयर की थी ये बात। यशोमती माता जी का जो ग्रुप है, प्रभुपाद जी की शिष्या। तो यशोमती माता जी बता रही थी कि देखिए, सब कुछ भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है, कुछ भी भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है। कौन व्यक्ति भगवान के नामों को सुने, भगवान का कीर्तन करे, ये भी भगवान की मर्जी के बाहर नहीं, भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है। हम सोचते तो है कि हम किसी व्यक्ति को प्रचार करेंगे तो वो कन्विंस हो जाए, बट until and unless कृष्णा विल नॉट अलाउ इट, तो वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। तो यशोमती माता जी यही बात बता रही थी कि भगवान के नामों को कोई व्यक्ति सुने या बोले, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोले, ये इट इज नॉट दैट चीप। भक्त जो है वो नियमित रूप से अपना नाम जप करते हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हमारे लिए सहज हो जाता है। बट इट इज रियली नॉट चीप। हर कोई व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो भगवान का नाम बोले या कुछ भगवान के बारे में सुने, सुन ही नहीं सकता है जब तक भगवान अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही चीज नोटिस कर रहे थे कि कितनी बार भगवान का नाम लिया गया है, और कितने लोगों के कानों में भगवान का नाम गया। अगर ये सब हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे बहुत अच्छी शिक्षा हमें क्या मिल रही है, कि जितना हो सके भगवान के नामों का संपर्क लोगों को देना चाहिए। उनके कानों में भी भगवान का नाम जा रहा है, तो वह भी उनका शुद्धिकरण कर रहा है, जैसे वो खुद नाम जप नहीं कर रहे हो, पर आप अपना जप उन्हें सुना रहे हैं। यू नो, एवरी टाइम व्हेन यू टॉक विद समवन, मैं तो हमेशा वॉइस नोट के थ्रू ही बात करती हूँ, तो मेरा हमेशा जो मैसेज है वो हरे कृष्णा से स्टार्ट होगा, और एंड भी हरे कृष्णा से होगा। हर एक मैसेज में मैं बोलती हूँ हरे कृष्णा, फिर जो बात होती है उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, और एंड भी फिर हरे कृष्णा से करती हूँ। कम से कम इतनी बार तो भगवान का नाम उसके कानों में जा रहा है, और इतना एंथुजियास्टिकली मैं बोलती हूँ हरे कृष्णा। फिर मैं उसके बाद में सामने वाले को भी टेस्ट मिले भगवान का नाम सुनने में। ये तो काफी बार लोग इग्नोर कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी लगती है, पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसी से हमारा आगे का जो डिस्कशन है, भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आई एम टायर्ड नाउ, एंड वी विल मीट टुमारो इफ कृष्णा डिजायर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।